سے بھاگ کر نکاح نہ کرنا، گھر نہ بسانا، بزدلی دکھانا، دین اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ حضور کی اولاد پاک سرکار کے کاشانہ نور کے دامن سے پھوٹتی ضیاؤں سے ہر شخص اپنے اپنے گھر کو، اپنے نجی اور ذاتی معاملات کو ترتیب اور مزین کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، ان کی فکر بھی بڑی تازہ ہوتی ہے، سوچ بھی بڑی بلند ہوتی ہے، بہت سارا کام کرنے کی اور بہت ساری خدمات سر انجام دینے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن بیچارے اپنے گھر کے اندر بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ گھر کے مسائل، گھر کے حالات، نجی زندگی کو درپیش پریشانیاں ان کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ میں نے دیکھا ہے بڑا باصلاحیت نوجوان ہوتا ہے، اس کی سوچ میں بڑا ولولہ، لفظوں میں بڑی تازگی ہوتی ہے اور فکر بڑی بابوزو ہوتی ہے، لیکن وہی بھائیوں کے جھگڑے، وہی بیوی اور اہلیہ کا فساد، وہی چھوٹے موٹے مسائل پوری طور پر ذہن پر سوار ہو جاتے ہیں۔ انسان کچھ کر نہیں سکتا، جانے کس عمر میں جائے گی عادت میری، روٹنا اس سے قوموں سے الجھتے پھرنا۔ انسان کے ذہن پہ کچھ اور سوال ہوتا ہے۔ وہ حضرت صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے تنقید کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ اگر تم گھر سے ناراض ہو تو کلاس میں نہ پڑھانے کے لیے نہ بیٹھا کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ غصہ کسی کا ہو نکل بھی جائے طالب علموں میں جائے۔ آپ جب ذہنی طور پر گھر کے مسائل کا بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں تو آپ آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کے نزول کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا معنی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ان چیزوں کا رب رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں روکتے ہیں اپنے اہل خانہ کو بھی روکو۔ معنی کیا ہے؟ اپنی بھی تربیت کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر کے چلو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بعض ذاتی معاملات میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہم گھر کی تربیت پر اس طرح سے وقت نہیں دیتے جس طرح سے کہ وقت دینا چاہیے۔ ہم اپنی سوچوں سے، اپنی فکروں سے باہر تو ایک اچھا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں اور اہل خانہ کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ آپ کا خاندان بھی اگر اس مشن کا حصہ ہو جائے جو آپ کا مشن ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ کا بہت سارا کام بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نا ہمیں ایک خوبصورت گھر بنا کے دکھایا اور اس گھر کی محبت ہم پر ضروری قرار دی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، فرمایا محبوب ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر حضور کے کاشانہ نور سے پیار کرو گے نا، حضور کے اہل بیت سے محبت کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ تم نے اپنے گھر کو اس طرح تشکیل دینا ہے جو طریقہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ ہم بھلا اپنا گھر کیسے بناتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ساری سہولیات سمٹ کر میرے آنگن میں آ جائیں، ہر قسم کی آسائشیں، ہر قسم کی آسانیاں دے دیں آپ اپنے بچوں کو، ساری آسانیاں۔ منع نہیں ہے اگر آپ کے پاس جائز پیسے ہیں، لیکن اس کا آپ نقصان دیکھیں گے۔ وہ اگر خود اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پیتے تو آپ کو بھی کبھی نہیں دیں گے۔ اگر ان کی زندگی اتنی سکون والی، آسانی والی ہو گئی ہے تو آپ مت سمجھیں آپ کا حکم وہ بھاگ بھاگ کے مانیں۔ آپ نے ان کے لیے بہت اچھے طریقے سے بھی منصوبہ بندی کی ہوگی تو آپ کے کام کو کبھی لے کے آگے نہیں چلے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے حضور دعا مانگی ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں اللہ ایک وقت روٹی دینا،
और एक वक्त फाका। आपको नहीं मिलेगा आज को ये वाली दुआ मांग, लेकिन सियासत में मौजूद है। हुजूर ने अपने लिए अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी दे, एक वक्त फाका दे। मालिक जब रिस्क दे तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और जब फाका हो तो मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजबूर नहीं है फक्र पर। ये जो हुजूर के घर के अंदर महीना महीना चूल्हा नहीं जलता, तो क्या कोई माज़अल्लाह मजबूरी है नहीं जलता? क्या इस पर माज़अल्लाह हुजूर मजबूर है? नहीं। गरीबों सुनो, दरअसल ये फकीरी ये मेरे नबी की पसंद है, ये फाका करना ये हुजूर की चाहत है, ये अंदाज ये नबी पाक का महबूब है। थोड़ा खाना खाना, सादा तर्ज जिंदगी रखना, और कभी कभी फाका करना, कभी कभी आजमाइशों में आना, ये हुजूर की तबीयत। और मेरे भाइयों, दौलत अगर बड़ी अच्छी होती तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा की तिजोरियों में, सबसे ज्यादा उस घर में होती। हुजूर तो फरमाते हैं, रब जिससे प्यार करे उसे इस तरह दौलत से बचाता है जिस तरह तुम सर्दियों के बीमार को ठंडे पानी से बचाते हो। अल्लाह तो बचाता है, इस पर दुनियादारी का गलबा ना हो। हम सिर्फ सुख तलाश करके, मैं मना नहीं कर रहा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हें वुसअत दे तो अपने घर वालों को दो, जायज़ पैसे हैं तो मना नहीं, लेकिन आप उन्हें इस तरह से सहूलियात का आदी ना करें। जिस घर में बहुत सहूलियात आ जाती है उसमें 2-3 बीमारियां, एक तो एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, और फिर जो तुम फरमाया करते थे जहाँ पैसा आता है वहाँ फितना भी आता है, वहाँ दौड़ भी लगती है, जहाँ सादगी होती है वहाँ वो वाली मामला नहीं होते, लेकिन दौड़ लगती आजमाइशें। मैं अक्सर सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन जो होता है वो आसान और सहूलत वाले घरों में क्यों होता है? करने को काम ही नहीं है, वजूद को मुशक्कत ही नहीं। पहले हम कभी डॉक्टरों के पास जाते थे तो डॉक्टर कहते थे कुछ दिन आराम करें ठीक हो जाए। अब जो भी डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर उसे कहता है कोई काम करे ठीक हो जाए, सवेरे सैर करें, आधा पौना करें, दोपहर को थोड़ा निकला करें। आपके वजूद को वर्जिश की ज़रूरत है, यानी आप सहल पसंद आराम बड़ा करते हैं, कुछ मुशक्कत करें ताकि आपकी सेहत ठीक हो। हालात बदल गए, कोई काम करने को तैयार नहीं। देखिए ये कैसी जिंदगी है रसूल करीम के खानदान की। कोई दुनिया में इतना गरीब इस मजमे में बैठा है। वैसे तो हर दूसरे आदमी का दावा है ना, बड़ा गरीब हो, लोग रो रो के दिखाते हैं, और गुर्बत है भी, इनकार भी नहीं, लेकिन क्या कोई इतना गरीब इस महफिल में बैठा है जिसकी बेटी इतना काम करती हो कि हाथों पे छाले पड़ जाए, मुशक्कत के साथ उसके हाथों पे निशान पड़ जाए? है कोई इतना गरीब बैठा? बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, कायनात की सबसे शानों वाली बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो इतना काम करती थी कि हाथों पे छाले पड़ जाते। वो तो चक्की पीसती थी, आटा गूंथती थी, घर के अंदर सारे काम काज करती थी, लेपा पोती कर सब ड्यूटियां करती। आज क्या करते हैं हमारे बच्चे? किस बात के दुख हैं? हर तीसरे आदमी की बेटी ससुराल में दुखी है। मसलन क्या है? उसे सिर्फ ये है कि हमारा मिजाज इस तरह का है कि हम सहल पसंद है, हम बैठे हुए। मुझे एक दोस्त कहने लगे पीरों के बच्चे कोई इनकलाब में शामिल क्यों नहीं होते? मैंने कहा वो कैसे शामिल हो गए जिनके टिशू भी कोई और उठाता है, इतने वजनी लगते हैं, जूते 2 बंदे उठाते हैं, गाड़ी का दरवाजा कोई खोलता है कोई बंद करता है। आप इनसे तवक्को करेंगे जिनको धूप बहुत ज्यादा लगती है, इन्होंने हर जगह 4-4 एसी लगा रखे हैं, ये इनकलाब बर्पा करेंगे? ये तो बेचारे सहम जाएंगे, डर जाएंगे। इनकलाब वो लोग बर्पा करते हैं जो सैयदना फारूक आजम की तरह अगर नींद सख्त आ जाए तो जमीन पर रोड़े भी पीछे हो तो वहां भी पत्थर का मिट्टी का तकिया बना के आराम करने लगे। आपको मुशक्क़तों की आदत ही नहीं, आपका मिजाज ही नहीं, आपकी तबीयत ही नहीं, आप थोड़ा सफर ही नहीं कर पाते, आपको तकलीफ सहने की आदत नहीं है। तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान, अपने घर हुजूर ने मुशक्कत का दी। उनको वो वाली आसानियां सहूलियात नहीं थी, बल्कि उस वक्त जब बड़ी मुश्किल आ गई, जब हजारों दिनार
माले गनीमत में लोगों को मिलने लगे, उस वक्त भी बुखारी में हदीस मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं असर की नमाज पढ़ के अल्लाह के रसूल इतनी तेजी से घर गए कि ये मंजर पहले कभी नहीं देखा था। हम बड़े हैरान थे कि मसलन क्या हो गया, ना कोई पैगाम आया है, ना किसी ने आके कुछ कहा, इतनी तेजी से हुजूर तशरीफ ले। तो कुछ ही देर के बाद करीब वापिस भी आ गए। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो बाहरी नफ्सियात हैं वो मदीने वाले, जो ज़हन की सतह पर सवाल कभी पैदा हो सकता है ना, और सदियों बाद पैदा हो सकता है, उसका जवाब भी हमने पहले ये क्या करता है, आपको इशराह सद्र देता है। जो बहुत सारे लोग माज़अल्लाह खुदकुशी की तरफ रगबत करते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी, दीन नहीं पढ़ा हुआ। हम जब मदारस में पढ़ते हैं ना तो हमारे साथिया, मैं कोई मुश्किल बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत दीनी तदरीस से वाबस्ता है, हमारे साथिया में काम करते हैं, वो इबारत पढ़ते हैं तो कैसे इस इबारत पर ये एतराज़ वारिद होता है, पहले खुद एतराज करते हैं फिर खुद जवाब देते हैं, खुद सवाल और खुद, यानी जो कभी किसी शागिर्द के ज़हन में बात उठनी है उसको आज तैयारी करा के भेजें। आज दीन क्या करता है, आपकी तसल्ली कराता है, आपकी ज़हनी आसूदगी का बायस बनता है, आपकी नफ्सियात में कुछ चीज़ ऐसी नहीं रहती फिर जो आपको परेशान करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नफ्सियात बड़े करीब से मामूल समझते थे, क्योंकि अल्लाह ने मखलूक का रसूल बनाया। तो सरकार वापस आ गए। अब लोगों के ज़हनों पर सवाल उभरा हुआ था कि हुजूर इतनी तेजी से क्यों गए। तो महबूब फरमाने लगे तुम सोच रहे होगे मैं इतनी तेजी से गया और इतनी तेजी से क्यों आया, और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ या रसूल अल्लाह, बिल्कुल सोच रहे हैं। तो महबूब फरमाने लगे घर में ना कुछ सोना आया था, मैंने सारा बांट दिया, तो नमाज पढ़ी तो मुझे ख्याल आया एक डली टुकड़ा सोने का पड़ा हुआ, मैंने कहा कहीं देर ना हो जाए, फौरन वो भी जाके अल्लाह के रास्ते में। घर में इतना माल बड़ा नहीं रहने देना चाहता। आप सुन्नत और शरीयत के इस दाविये के अंदाज में जरा अपने घर को मुरतब करके तो देखें। वो जी लोग फख्र से बताते हैं, तो कहते जी मैं ना जी वो घर में कल मर्जी की चीज़ नहीं पकी हुई थी तो मेरे बच्चे ने मोबाइल तोड़ दिया। तो मैंने कहा जी फख्र वाली बात है, यहाँ बड़ा शौक से सुना रहे हैं कि मैंने बड़ा दाखला रखा हुआ है, थोड़ी जिंदगी में मुशक्कत आ गई तो क्या करें, खुदा न खास्ता कभी फाके आ गए तो क्या करें। ये नाज के साथ आप सुना रहे हैं। हमारे एक दोस्त है, चले ये बात दिल लगी वाली भी है और समझने वाली भी। वो कहते हैं मेरा बच्चा कुछ सब्जियां नहीं खाता, अब वो कहता है ना मैंने नहीं खानी, तो उसकी अम्मा 500 देती है बेटा बाहर से खा। कहते हैं हमारी अम्मा अब्बा को पता नहीं क्या था, मुझे आलू को भी पसंद नहीं, तो घर में पकी होती थी तो मैं कहता था मैंने नहीं खानी, फिर नतीजा ये निकल था कि फैजी भी खाता था और आलू को भी खाता, डबल खाना पड़ता था। अब ये है कि बच्चों को आप किसी डॉक्टर के पास चले जाए, वो आपसे कहेगा बच्चों का फास्ट फूड बंद कर दें, तो भाई फास्ट फूड लगाया किसने बच्चों को, किसने लगाया। थोड़ा सा अपने घर पर तवज्जो करें, ये हुजूर की अहले बैत नबुव्वत का फैजान समझे, आप गौर फरमाएं इनके अंदर देखे ना। और फिर हम बच्चों को बुज़दिली सिखाते हैं, जनाब बाहर ना जाना, लड़ाई हो रही है, ये सड़क ना क्रॉस करना, हालात खराब हो जाएंगे। देखो ना ये हसनैन करीमैन की शान है। जब चारों जानब से पलवानियों ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर को घेर लिया ना, तो खतरा सबसे ज्यादा दरवाजे पर था कि कोई दरवाजा क्रॉस करके आ ना जाए और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद न कर दे। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोनों शहजादों को लाए, इमाम हुसैन को, और दोनों की आंखों में तलवारें थी, और बेटा इस दरवाजे में खड़ा हो जाओ, कोई सालिम यहाँ से गुजर के तुम्हारे आदमी को कोई तकलीफ न पहुंचे। यहाँ खड़े जहाँ सबसे ज्यादा खतरा हसनैन करीमैन पहरा दे रहे, खुदा के बंदों समझो तो सही, इन्हें जीना सिखाओ, इन्हें खड़ा होना सिखाओ, इन्हें मैदान में रहना सिखाओ, इन्हें ताकतवर बनाओ, इनकी मिसाल के अंदर वो चीज पैदा करो कि घबराए नहीं, ये परेशान करो कि जिंदगी उलझ ना जाए। ये हमें कहने में कैसे मिलता है।
پھر آپ یہ بھی کہیں کھانا نہیں کھایا اس طرح پھر آپ یہ بھی سنائیں. بڑے سے بیٹھے بڑی دلیری سے میرے کہنے لگے انسانی وجود میں کمی ہو جاتی ہے خوراک نہ کھانے سے، وہ بڑی طاقت سے میدان میں نکل نہیں سکتا. تو آپ بڑی دلیری سے آپ اس بات کو بیان کر دیتے ہیں. اور وہ اپنی بات کہنے لگے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو عصر کے بعد میرا دل کرتا ہے مجھے آواز بھی کوئی نہ دے. ایک دن کی صرف اور وہ بھی پورے 24 گھنٹے کی نہیں، 11-12 گھنٹے کی ان کو عصر کے بعد کہتے ہیں وہ مطلب مشکل ہو جاتا ہے. آپ 3 دن بھوکے پیاسے رہے اور اس کے باوجود بڑی دلیری سے میدان میں لڑے، کچھ ہمیں سمجھائیں. میں نے یہ کہا کہ جن کی ماں نے بچپن سے عادت ڈالی ہو نا 3 دن بھوکے پیاسے رہنے، نہیں سمجھ آئی بات کی آپ. یہ اچانک ہو تو مشکل ہوتا ہے، اگر عادت ہو تو اگر آپ بچے کو بچپن سے سکھائیں نا، اگر عادت ہو تو پھر یہ مشکل کرنے لگے. وہ کیسے؟ تو میں نے کہا آپ امام راضی کو پڑھے، تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں 7 ساڑھے 7 سال عمریں ہیں امام حسن اور امام حسین، اتنی عمریں، اور 3 دن مسلسل روزے رکھے ہیں مولا علی شیر خدا نے اور سیدہ فاطمہ. اور بچوں نے کہا دونوں نے کہ ہم نے بھی رکھنا ہے روزہ اگر آپ رکھیں گے. شہزادوں نے بھی ساتھ روزہ رکھا، اور تینوں دن یہ منظر ہوا ہے کہ جب افطار کرنے کے لیے سامان ٹیبل پہ آیا ہے، کچھ کھانا رکھا ہے، اور وہ بھی جوں کی روٹیاں، بندے 4 اور روٹیاں 3، کبھی بندے 4 اور روٹیاں 2. جیسے ہی افطار کرنے لگے ہیں دروازے پر سوالی آ گیا، کبھی کو قیدی آ گیا ہے، کبھی کو راہگیر آ گیا ہے، کبھی کو مسکین آ گیا. تینوں دن اٹھا کے اس کو دینی ہے، اور ایک کھجور سے افطار ہے اور ایک کھجور سے سحری ہے. میں نے کہا مولا علی دیکھ رہے تھے، سیدہ پاک دیکھ رہی تھی کہ 3 دن انہوں نے بھوکے پیاسے رہنا ہے. انہوں نے اپنے سامنے پہلے ہی تربیت کر دی، ٹریننگ دے دی. تو بچے کو عادت نہیں ڈالی، وہ سہ ہی نہیں پاتے، اس لیے کسی میدان میں کھڑے نہیں ہوتے. ذہن ہی نہیں ہے، مزاج نہیں، طبیعت ہی نہیں. میرے بھائی مشقت کی عادت، اپنے بچوں کو آپ میدان میں رہنا سکھائیں. اور سب سے ضروری بات یہ ہے یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ مہربانی کریں گے، تھوڑا اپنے بچوں کو بھی وقت دیں گے. ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے بعد میں پانی لیتے رہتے ہیں اور اپنے سارے ان کے بھوکے خشک رہ جاتے ہیں، اپنے گھر میں توجہ ہی نہیں کرتے، ڈیوٹی نہیں کرتے، گھر میں وقت ہی نہیں دیتے. پہلے تو آپ یقین کریں بڑے شکایت کرتے تھے کہ بچے سے کہیں موبائل بند رکھے. اب تو بچے کہتے ہیں ابا جی سے گزارش کریں جب گھر آ جائے پھر تو موبائل چھوڑ دیا کریں، مہربانی کریں کوئی ہم سے بھی کلام کرے. یہ دیکھیے نا مصروف ترین وقت ہے نبی کریم علیہ السلام کا، حضور کی حیات مبارکہ کا لمحہ. مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. ایک لمحہ نبی ہے حضور کی زندگی کا، ہر وقت دین کی خدمت، ہر وقت تبلیغ. اور پھر مدینہ منورہ میں منافقین کی سازشیں، کافروں کی شرارتیں، جنگ کے لیے سخت بندیاں، بڑے بڑے مشکل مراحل، لیکن اس کے باوجود حضور اپنے اہل خانہ کو وقت دیتے ہیں. یعنی حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہے جناب زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ بنت زینب، بخاری میں موجود ہے. حضور نماز پڑھنے جاتے تھے تو نواسی کو ساتھ لے جاتے تھے. آپ دیکھیے نا ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کہا میرا دل کرتا ہے آج رات میں تیرے گھر میں رہوں. حالانکہ شہزادے سارا دن وہی رہتے تھے، دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا، لیکن اسپیشل وقت نکال کر گئے. اور پھر کہا یہ بچے میرے ساتھ سوئیں گے. ایک طرف امام حسن کو لٹا لیا، ایک طرف امام حسین کو لٹا لیا. رات کو شہزادوں نے دودھ مانگا اور پیالے میں دودھ پڑا تھا تو کریم فرمانے لگے فاطمہ تو لیٹی رہے دودھ پینے میں آئی اٹھ کے دودھ. او بھائی آپ وقت تو دیں اپنے بچوں کو، آپ ٹائم تو دیں، آپ ان کے سوال سنیں تو صحیح. یہ اس وقت آپ ٹائم دیں گے جب آپ کو پتا چلے گا کسی رافضی کے ہتھے چڑھ گئے، خارجی کے ہتھے چڑھ گئے. اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بد عقیدہ تھا، وہ جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے فاتحہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں، تب آپ وقت دیں گے. جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری زندگی بزرگوں سے لے کر اب تک اتنی محنت کی، اکارت جانے لگی ہے، تب اپنے گھر میں وقت دیں گے. اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے سوال سنیں. اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو وہاں لے کے جائیں جہاں سے ان کی تشنگی بجھائی جا سکے. آپ اپنے گھر کو سنواریں، کھینچیں، اس پر کام کریں.
देखने वालों का भी मंजर है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? बस चंद एक गुजारिशात और। साहबजादा साहब बड़े मोहब्बत वाली शख्सियत है, तो इनके दावत देने से महसूस होता है कि आना ही पड़ेगा। तो मैं हाजिर हो गया। अपना आज का ज़्यादा तवील गुफ्तगू कर नहीं पाता इस तबीयत की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ईमान के साथ कायम रखे और ईमान के साथ अपनी बारगाह में बुलाए। चंद एक दो बातें करनी, आप गौर फरमाएंगे, मैं अपनी बात को समेटने लगा हूँ। बस सीरत लिखते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। बातें मुनफरद है, यानी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिस हिस्से में सीरत लिखी है ना, वो शख्स लिखता है कि महीना महीना घर में चूल्हा नहीं जलता, कई चांद गुजर जाते थे, तंदूर पर, सिरके पर, पानी पर गुजारा है। ये वो लिखेगा, ये वही लिखने वाला है। लेकिन 2-4 सफ़े छोड़कर या कोई एक आध सफ़ा छोड़कर या चंद लाइनें छोड़कर वही शख्स, ये जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा, नहीं जो शख्स ये लिख रहा है ना कि महीना महीना चूल्हा नहीं जला, खाना नहीं पका, कई चांद गुजर गए, चंद सफ़े छोड़कर वही बंदा लिख रहा है कि जो दरवाजे पे मांगने आता था उसे झोली भर के दिया जाता। ये कैसी अनोखी सखावत है, ये कैसा अनोखा अंदाज है कि घर के अंदर महीना महीना चूल्हा नहीं जला। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने आके कहा, या रसूल अल्लाह कुछ दीजिए। हज़रत उमर बैठे थे, सैयदना बिलाल हाजिर थे। हुजूर ने फरमाया, बज़ाहिर तो इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं, फलां दुकानदार के पास जा, मेरे नाम पे उधार ले ले। तो हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुकल्लफ तो नहीं ना करता, इसका पाबंद तो नहीं ना करता, शरीयत तो यही कहती है तो दे दे। आपकी तवज्जो है बात पर? है तो शरीयत तो यही कहती है, इसकी पाबंदी तो नहीं ना दीन लगाता कि आप जरूर ही दें। मेहरबानी करेंगे आप तशरीफ, अल्लाह आपको सलाम। बस बात सुन, तो शरीयत पाबंदी तो नहीं ना लगाती। तो हजरत उमर की बात सुनकर इस बात को हुजूर ने कुछ ज्यादा पसंद नहीं फरमाया। हजरत बिलाल बोले, अर्ज की हुजूर आप दीजिए, अर्श का मालिक बड़ा नवाज़े। सैयदना बिलाल अर्शी की बात सुन के हुजूर का चेहरा खिल उठा, यानी 2 जहां के शाह है और पास कुछ रखते नहीं, क्योंकि 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। नबी पाक अलैहिस्सलाम बता करते, यही उसवा अहले बैत है कि बाहर घर में खाने को कुछ नहीं, लेकिन जब कोई आया है तो झोली मार के अदा। ये अपने बच्चों को सिखाएं, उनमें इशार की आदत। आप यकीन करें, अपने ऐसे घरों के बच्चे देखें, स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, आज के गए गुजरे दौर में भी जो बच्चे कहते हैं यार कि हमारा फला क्लास फेलो फीस नहीं दे सकता, हम सारे मिल के फीस ना अदा करें। ये किताबें खरीदने की पोजीशन में नहीं है, कहीं दारा छोड़ ना जाए तो हम इसकी मदद ना करें। हम जब ये इशार का जज्बा अपने बच्चों को सिखाने में कामयाब हो जाएंगे, आपको पता है सखावत की इनकी दौलत की नहीं, दिल की। ये कुछ शायराना बात नहीं, कुतुब हदीस में पूरा बाब है कि बंदा गनी दिल का हो, गिना का ताल्लुक दिल से। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं, सखियां कुल माल नहीं होता। हाँ, इथे उथे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं होता, उसमें कहीं उसको नुकसान भी नहीं होता, वो कंगाल भी नहीं होता। ये भी समझ ले अच्छी तरह। दाता साहब ने लिखा है कि इमाम हुसैन के कुर्ते पर जगह जगह पेबंद लगे हुए, लेकिन एक साइल दरवाजे पे आया, उसने आके कहा हुजूर कुछ दीजिए। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, यार बज़ाहिर तो मेरे पास इस वक्त कुछ मौजूद नहीं, थोड़ा इंतजार नहीं करता। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम साहब के पास 1,00,000 दिनार या 1,000 दिनार आए, सारे उठा के साइल को ले। अल्लाह करे आप इसे खतीब की खिताबत ना समझें, इसे थोड़ा अमली जिंदगी में लाए, सारा ही उठा के दे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में एक शख्स ज़कात लेने के लिए आया तो लोगों ने इतनी ज़कात दी कि अगले साल वो खुद ज़कात दे रहा है। हम जो किसी को देते हैं ना तो उसको स्टैंड नहीं करते, पाँव पे खड़ा नहीं करते, हम 5-10 इतना देते हैं कि जिससे वो मांगता ही है। किसी गरीब को आप देखें, सूरत हाल का पता करें, अगर वाकई वो ज़रूरतमंद है तो आप उसके साथ इस तरह से खड़े हो कि मांगना छोड़ जाए। अब वो कहीं स्टैंड हो जाए, वो काम करने लग जाए, अपने
भिखारियों को भिखारी ही बनाया है। वो एक साथ मुझे खबर कहने लगे, ये हमारे पास मुलाजिम है, इनके वालिद भी यहाँ काम करते थे, मेरे वालिद के पास और उनके वालिद, इनके दादा भी हमारे दादा के पास काम करते थे। तो मैं बड़ा मुस्कुराया, मैं कहने लगी जान छाड़ दे हो, मतलब अपना भी कुछ करेंगे, इनको काम को नहीं शुरू करा के दिया। खुदा के बंदे अभी तक ये बेचारे मजदूरी में ही लगे हुए, यहाँ पर उठने नहीं जाएंगे। मेरा जरा देर तक कल भी थी तो वो हंसने लगे, कहने लगे कहते तो आप ठीक है। मैंने कहा मेहरबानी करें ना, आप कुछ इनको निकलने दें, इनकी सोच बदलने दें, इनसे कहें कि भैया अब तुम्हें स्टार्ट करा के देख दिया, तुम भी कुछ करो। तो हमारा मिजाज इस तरह, इमाम हुसैन की सखावत का ये मंजर है कि 1000 दिनार उठा के दे दिया पर सैयदा पाक की लाल की अजमत के कुर्बान जाए। फरमाने लगे मैं तुझसे माजरत खा हूँ, तुझे इंतजार की मुशक्कत उठाऊँ, यानी खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगते का भला हो। आखिरी गुजारिश हमारी खिदमत में ये है कि इमाम हसन और हुसैन को ना कुरान पाक से बड़ा प्यार है, सजदे से बड़ा हल्का हल्का ऐसे ऐसे करते हो, बड़ा गौर करते हो कि ये अब किस तरफ जाने लगे। आपने सब ने ये 1000 बार सुना होगा कि इमाम हुसैन ने करबला की तपती रेत पर भी सजदा किया। उस तपती रेत पर भी सजदा भी जारी रहा और सर कट भी गया पर कुरान मजीद की तिलावत जारी रही। वो कैसा हुसैनी है जो नमाज नहीं पढ़ता? वो कैसा खानकाई है जो निजाम नमाज ही नहीं पढ़ता, कुरान मजीद ही नहीं पढ़ता, सारा दिन बीत गया, सुबह से उठे कुरान पाक की ज़ियारत ही नहीं की? किस तरह का मिजाज? मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आप कहें कि मैं सबसे गुनाहगार मुरीद हूं आस्ताने का, कहें आपके दोस्त ये मानने को तैयार नहीं, तो आपको अपने आस्ताने का नुमाइंदा समझते हैं। आप अपनी बीवी को सख्त जुमलों में कोई बात कहेंगे ना, तल्ख जुमला कहेंगे तो कहेंगे ऐ दसिया तेन तेरे पीरा ने ऐसी खाने लगे, वो तू और मैं नुमाइंदे हैं अपने आस्ताने, खुदारा अपना नहीं तो उनका तो ख्याल करो जिनका नाम लेते हो, जिनसे निस्बतें रखते हो, जिनके ताल्लुकात आपका उसने इखलाक है। माँ से कहे मेरे बेटे से, मेरे बेटे को भी अपने बेटे से क्या वहाँ ले जाए, इतना ये जा रहा है, क्या इखलाक संवर गया है, मस्जिद में आने लग गया है, इसका तो लबो लहजा बदल गया। लेकिन मेरे भाई अगर आप सिर्फ गुफ्तगू में जिंदा हैं, आपके अंदाज में तब्दीली नहीं आती, आपके घर वाले पर्दा ही नहीं करते, शरीयत की हुदूद का हमें ख्याल ही नहीं है, खाली करामात सुनाने से कोई मुतमईन होने के लिए तैयार है। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी, अमर इब्ने साद ने कहा जनाब इमाम अली मकाम से कि हुसैन यहाँ बैत है और यहाँ जंग है, तो बताइए क्या करना है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे सुबह बताऊँगा। हजरत अब्बास हाजिर बारगाह हुए, अर्ज गुजार हुए, भैया हमें पता तो है सुबह क्या फैसला होना है। तो ये बड़े अजीब लोग हैं, सोचेंगे पता नहीं हुसैन ने सोचने की मोहलत मांगी है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाने लगे अब्बास तेरा क्या ख्याल है? मैंने सोचने को टाइम मांगा। का हुजूर फिर किस लिए मांगा है? तो ये इमाम अली मकाम का जुमला सुनो। फरमाने लगे मेरे भाई अब्बास तुझे पता है ना मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, मुझे सोच दे, मुझे सांस दे, मुझे नींद शब्द का न्याज है, तब ये सजदा में खुद को ही तोड़ दूँ, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज। आप सजदे में हो तो जरा उसकी लज़्ज़त ले रहे हो, आप अल्लाह के हुजूर झुके हुए हो तो आपकी पेशानी उसका मजा ले रहे। अब्बास आपको पता है मुझे सजदों से बड़ा प्यार है। कहा भैया मैं जानता हूँ। तो कहा मैंने तो इसलिए कहा सुबह बताऊंगा कि मैं एक रात जरा राज के अपने रब को सजदा तो कर, जरा मेरी पेशानी सजदे की लज्जत तो ले। सारे कामों में हमारा टाइम लंबा लगता है और हमारी नमाज की मसरूफियत मुख्तसर होती है। ये जरा इस तरफ दिल तो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोनवर्दी ना मुरीद बैठे होते थे, उठ के चले जाते, 2 नफल पढ़ने शुरू कर दिया। कई दफा ऐसे होता है सामने का हुजूर लोग सीखने आया, आप उठ के चले गए। तो मानने लगे अपनी रूहानियत मजबूत करना चाहता हूँ, अल्लाह रसूल से कुछ लूंगा तो तुम्हें दूंगा, मेरे पास कुछ होगा, मेरा कुछ सजदे से ताल्लुक होगा तो बात आगे बढ़ेगी। पहले बैत जो हमें दुरूस देते हैं उनसे सबक हासिल करें, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। एक आपके बदल जाने से, एक शख्स के बदल जाने से पूरा पूरा घर बदलेगा, कबीला बदलेगा,
آپ انقلاب کو آتا دکھائی دیں گے ماحول کے اندر. آپ کے بدلنے سے آپ کے دوستوں کی ساری محفل بدل جائے گی.